my dear students. Welcome back to your English class. How are you all? Everyone is fine. So good. Today we are going to do chapter number 16 and the name of chapter is Subject Verb Agreement. Subject Verb Agreement. What is Subject Verb Agreement? Let's check. The subject and verb must agree in number. It means कि subject और verb जो होती है उनको नंबर में एक दूसरे से एग्री होना होता है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ कॉमन नाउन. किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, अ प्रॉपर नाउन और अ प्रोनाउन. इट मींस कि सब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या फिर प्रोनाउन. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, keep this in your mind, if the subject is singular, the verb must be singular. This is actually called subject verb agreement कि subject जैसा होगा उसकी जो verb है वो भी वैसी ही होगी. It means कि subject अगर singular है तो verb भी क्या होनी चाहिए, singular. If the subject is plural, अगर subject plural है the verb must be plural. It means कि हमें subject को ध्यान में रखते हुए वर्ब यूज करनी होगी. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल. टेक नाउ एग्जांपल्स. फर्स्ट इज माय फादर इज गोइंग ऑन अ टूर टू इंग्लैंड. नेक्स्ट, द केक हैज चॉकलेट ऑन द टॉप. थर्ड इज नेहा एंड दृष्टि आर गोइंग टू पार्क. नेक्स्ट, these mangoes have gone bad. Now just check, but which is the subject here? Father. Father is subject here. Check the verb. Verb is. Father is singular or plural? It's singular. It is singular. And what is verb? It's also singular. So it means if the subject is singular, the verb is singular. Okay, let's see the next one. The cake has chocolate on the top. Which is subject here? The cake. Cake is subject here. And which is verb here? Has. Has is verb. And cake is singular or plural? Yes, it's singular. So we will write it as singular. And the verb has, it's also singular. So it means again here we are just चेकिंग कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है और वर्ब भी क्या यूज हो रही है, सिंगुलर. नेक्स्ट, नेहा एंड दृष्टि आर गोइंग टू पार्क. फर्स्टली वी विल चेक द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. व्हिच इज सब्जेक्ट हियर? नेहा, दृष्टि. नेहा एंड दृष्टि टू सब्जेक्ट्स है ना, तो सब्जेक्ट ये दोनों हैं. नेहा दृष्टि दोनों ही सब्जेक्ट हैं और इसमें वर्ब क्या है, आर. आर इज वर्ब. और नेहा दृष्टि जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, इट्स plural. It's in plural form. और जो verb है that is also plural. Here the subject is plural and the verb is being used plural. Okay. And third is these mangoes have gone bad. Firstly we will check the subject. Subject is mangoes. And which is verb here? Have. Have is verb here. And what is subject here? Is it singular or plural? Yes, this is plural. And verb is also plural. It means here we are using subject plural and verb also plural. In the first and second sentence you have checked that कि subject singular है और verb भी क्या यूज हुई है, singular यूज हुई है. इसमें भी subject singular और verb क्या है, singular. But in third and fourth sentence subject plural है और verb भी क्या यूज हुई है इनमें, plural. So it means it's clear to us कि अगर subject singular है तो verb क्या होगी, singular. And if the subject is plural, the verb must be plural. Now we will do bookwork. Match the subjects in the left column with their correct predicates in the right column. First, my boss. Its answer will be is going on a tour to France.
वाई आई हैव रिटन दिस आंसर बिकॉज माई बॉस इज सिंगुलर, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, दैट इज़ जो है वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है ये। रश्मि एंड हर ब्रदर, रश्मि एंड हर ब्रदर वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि रश्मि भी है उसका ब्रदर भी है, तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। रश्मि एंड हर ब्रदर आर गोइंग टू द फेयर। नेक्स्ट एलिफेंट्स, we will write answer E for this is इंटेलिजेंट एनिमल्स, बट यहाँ पर जो इज़ है यहाँ इज़ रॉन्ग है, एलिफेंट्स प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या राइट करेंगे, आर राइट करेंगे, प्लूरल वर्ब। एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स। फोर्थ आई, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एज यू ऑल नो कि एम यूज़ करते हैं, तो इट्स राइट आंसर विल बी आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट फिफ्थ, द क्लोथ्स आर इन द कपबोर्ड, क्लोथ्स यहाँ पर प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे हम, जो कि आर है। पाइनएप्पल केक, pineapple cake is singular, with it we will use singular verb. Is my favorite dessert, pineapple cake is my favorite dessert. नेक्स्ट सेवन्थ, एप्पल, दीज एप्पल्स, एप्पल जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव गॉन बैड, these apples have gone bad. In the previous chapter I have told you द यूज़ ऑफ इज़, एम आर, वोज, वर, हैज़, हैव, आपको सब बताया था मैंने कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है। इवन आई हैव टोल्ड यू द रूल्स ऑफ डू, डज, डिड ऑल्सो, तो द सेम ऑल द रूल्स वी विल अप्लाई इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट, नाउ टेक अ लुक एट द सब्जेक्ट एंड द कोरेस्पॉन्डिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हो इनमें। वी सी दैट इन अ सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है सेंटेंस में, तो जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस इज गोइंग ऑन अ टूर टू फ्रांस, तो यहाँ पर जो माई बॉस है वो सब्जेक्ट है, वो कैसा सब्जेक्ट है, इट्स सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, वो क्या है, is. My boss is going on a tour to France. Next, the pineapple cake has a cherry on the top. तो पाइनएप्पल केक यहाँ पर सब्जेक्ट है विच इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि हैज़ है। हैज़ हैव दोनों में से हमें चूज करनी हो तो हैज़ आएगा सिंगुलर के लिए, क्योंकि हैव प्लूरल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, इन अ सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि एंड हर ब्रदर आर गोइंग टू द फेयर, रश्मि एंड हर ब्रदर क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल ही यूज़ करेंगे, आर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दीज एप्पल्स हैव गॉन बैड, अब एप्पल्स जो हैं वो प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी हैव। Let's do exercise A. Choose the correct verb in each sentence. Follow the example. First, the girls have or has done their homework well. So girls is plural here. So according to plural, we will use have. The girls have done their homework well. First, the batsman has or have scored a century. Batsman is singular. So according to singular, we will use has. Second, she sings or sing in the school choir. What will we do? I have told you in the previous chapter that whenever he, she, it, or any person's name is there, we always use s or es with the verb. So the same conditions will apply here. We will write sings. She sings in the school choir. Third, the dog dash at stranger. Dog is singular. So according to this, we will use growls. Fourth, my mother go or goes to school at 8 a.m. Mother is singular. So according to this, we will use goes. Rest of the exercise you will do yourself. Now let's see what happens to the verb to be when the subjects are pronoun. टू बी वर्ब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी, और हम ये चेक करेंगे कि टू बी वर्ब के साथ क्या होता है कि जब उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। लेट्स चेक दिस टेबल। In this table, persons are given first, second, third person, singular and plural condition is given. फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है और प्रेजेंट सिचुएशन में है तो क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। अगर पास्ट में है, प्लूरल है, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। अगर सिंगुलर है और पास्ट में है, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, प्लूरल, और इन द पास्ट कंडीशन वी वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। सेकेंड पर्सन, if it is singular and in present situation you are student of class 4। नेक्स्ट, प्लूरल में है और प्रेजेंट है, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4।
नाउ जस्ट सी कि हमने इसके साथ आर ही यूज़ किया है यू के साथ इन बोथ द सिचुएशंस, बट क्या हुआ, सिंगुलर में स्टूडेंट था और प्लूरल में क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गए. सो दैट मेक्स क्लियर कि सिंगुलर है या प्लूरल है. सेकेंड पर्सन अगर प्रेजेंट है और सॉरी पास्ट में है और सिंगुलर है, यू वर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, प्लूरल है और पास्ट में है, यू वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. थर्ड पर्सन ही और शी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, प्रेजेंट में है ये और सिंगुलर. जब प्लूरल में होगा और प्रेजेंट में होगा, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4. नेक्स्ट थर्ड पर्सन अगर पास्ट में है और सिंगुलर है, शी ही और शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, और अगर पास्ट में है प्लूरल है, दे वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. द वर्ब्स टू बी चेंज विद द पर्सन और नंबर ऑफ द प्रोनाउन. प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन का नंबर क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब चेंज हो जाएगी. टू बी वर्ब, टू बी वर्ब हमारे क्या है, बी से क्या होता था, क्या बनता है, इज अमार वोज वर. Thus we see that the verb must always agree with the person and number of the subject. हम देखते हैं कि जो verb है always agree करती है person और subject के साथ, कि अगर subject इसका singular होगा तो verb भी singular होगी, अगर subject plural होगा तो verb भी क्या होगी, plural होगी, चाहे subject noun हो या फिर pronoun हो, जो भी. Exercise B. Now complete this table using the correct forms of the verb sing. यहाँ पर sing verb दी हुई है हमें, उसी को ही यूज़ करके हमें ये फिलअप जो है फिल करने हैं, ओनली विद वन वर्ब सिंग. तो वही कंडीशन है, फर्स्ट पर्सन में हमें चेक करना है, सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन में चेक करना है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, आई सिंग. प्लूरल के साथ क्या होगा, वी सिंग. फर्स्ट पर्सन अगर यू है तो उसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर में सिंग, प्लूरल में भी सिंग. थर्ड पर्सन की कंडीशन चेक करेंगे, व्हेनेवर ही शी होगा, इट होगा या वन पर्सन का नेम होगा, तो हम वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस. तो सिंग है यहाँ पर, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस. इट विल बी सिंग्स. अब थर्ड पर्सन है दे, थर्ड पर्सन है दे के साथ, दे प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, सिंग. नेक्स्ट, हियर आर सम हेल्पफुल टिप्स दैट विल हेल्प यू डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो कि आपको श्योर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में कैसे चेक करना है और क्या यूज़ करना है. फर्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड. अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जॉइन होते हैं, मतलब एंड से उनको उनमें एंड लिख दिया जाता है, दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. तो उनकी जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है. क्योंकि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड उनके बीच में आ गया तो वो भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, रीटा एंड रीना आर सिस्टर्स. अब रीटा सिंगुलर है, रीना भी सिंगुलर है, बट एंड से ज्वाइन हो गया तो ये दोनों हो गया सब्जेक्ट. इन दोनों से मिलके सब्जेक्ट बन रहा है, तो मीन्स वन से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आर. नेक्स्ट, मैनी सॉरी मैरी एंड आई. अब मैरी सिंगुलर है लेकिन आई भी सिंगुलर है, बट जब दोनों ज्वाइन हो गए एंड से तो क्या हो गया, सब्जेक्ट दोनों को मिलके बन गया, दोनों मिलकर बना तो क्या हुआ, वन से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया. मैरी एंड आई आर गोइंग टू द मॉल. नेक्स्ट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर joined बाय और, द verb agrees with the subject that is placed near the verb. जब क्या होता है कि टू सब्जेक्ट्स जो होते हैं और से ज्वाइन किए जाते हैं, तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा और रीना इज कमिंग टू द पार्टी. तो यहाँ पर रीटा और रीना है, तो रीना जो है और यूज़ हुआ, देखो रीना है वो वर्ब के साथ है. वर्ब कौन सी है, इज है ना इसके इसमें, तो इसके पास है तो इसलिए रीना सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी इज. सेकेंड, रीटा और हर सिस्टर्स आर कमिंग टू द पार्टी. रीटा और हर सिस्टर्स, इन दोनों में हम चेक करेंगे कि जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है, वर्ब के पास कौन सा है, हर सिस्टर्स. सिस्टर्स सिस्टर्स अपने आप में प्लूरल शो कर रहे हैं, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर. ओके, तो फर्स्ट था हमारा, जब एंड होगा टू सब्जेक्ट्स के बीच में तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे. और अगर होगा तो हम जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेयर, देयर और हेयर.
जब देयर और हेयर से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. सब्जेक्ट हमेशा कब यूज होता है? वर्ब के बाद में यूज होता है. सो यू मस्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट करेक्टली. आपको सब्जेक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस केबल. अब देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है. तो जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट कि सब्जेक्ट जो होगा वर्ब के बाद यूज़ होगा, तो वर्ब के बाद क्या यूज़ हो रहा है? अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम सिंगुलर हो गई, तो उसके लिए क्या यूज़ हुआ? इज़. तो इज़ क्या है? सिंगुलर. नेक्स्ट, हियर आर द रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. आर द रूल्स. अब यहाँ पर आई टोल्ड यू कि हेयर के बाद यूज़ हो रही है वर्ब, है ना. तो वर्ब क्या है? आर है. तो हमें अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. सब्जेक्ट वर्ब के बाद होगा. द रूल्स, रूल्स अब प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सी वर्ब यूज़ कर दी? आर. हियर आर द रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ either or neither nor the verb agrees with the subject that is placed near the verb. For example, neither Rita nor her sisters are coming to the party. अब इसमें हमें क्या करना है कि जिस भी सेंटेंस में नाइदर नोर यूज़ हो रहा है या आइदर और यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो बाद वाला यूज़ हो रहा है ना, तो उसके पास में सॉरी बाद वाला सब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है उसके साथ वाली वर्ब को देखना है हमें. वो सब्जेक्ट होगा आपका जो वर्ब के नियर होगा. ऑलवेज नियर होता है सब्जेक्ट वर्ब के. नाइदर रीटा नोर हर सिस्टर्स आर कमिंग टू द पार्टी, तो इसमें हर सिस्टर्स, हर सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? आर. नाइदर रीना नोर रीटा. अब रीटा जो है वो वन है, नोर के बाद वाला देखेंगे तो उसका वो क्या है? रीटा वन है. तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? इज कमिंग टू द पार्टी. नेक्स्ट, नाइदर रीटा नोर आई एम कमिंग टू द पार्टी. अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? वर्ब के बिल्कुल पास में आई यूज हो रहा है, वो सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे हम. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स. जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज गोइंग टू विन द मैच. टीम अब सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज होगा? इस. टीम कलेक्टिव नाउन है, देखा जाए तो टीम में बहुत सारे लोग होंगे, बट उन सब लोगों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए हमने नेम क्या दे दिया? टीम. तो एक हो गई ना वो टीम, सिंगुलर हो गया. सो वी विल यूज इज. द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. हर्ड जो है वो क्या है? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो फॉर दैट वी विल यूज इज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू योर क्लास इज वेरी नोटी और इंटेलिजेंट. योर क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, योर क्लास इज वेरी नोटी. तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर, इट्स रिप्रेजेंटिंग सिंगुलर नाउन. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट, बोथ, अ, फ्यू, सेवरल एंड मैनी टेक अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जब भी बोथ वर्ड आएगा, अ फ्यू आएगा, सेवरल आएगा, मैनी आएगा, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर एब्सेंट. बोथ में तो अपने आप ही दो लोग आ रहे हैं ना, ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो वैसे ही वो हमें क्लियर हो रहा है कि वो प्लूरल है. नेक्स्ट, अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव वोन प्राइजेस. अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो प्लूरल शो हो रहा है. वी विल यूज प्लूरल वर्ब हैव. सेवरल ट्रीज, सेवरल ट्रीज, कई ट्रीज, तो ये भी प्लूरल शो हो रहा है. आर. कट डाउन एवरी ईयर. मैनी गेम्स, बहुत सारी गेम्स, कई गेम्स, तो ये भी प्लूरल शो हो रहा है. आर प्लेड इन द स्कूल. नेक्स्ट, आइदर नाइदर ईच एंड एवरी वन टेक अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने बात की थी आइदर और इकट्ठा हो, नाइदर नोर इकट्ठा हो. ठीक है, जो हमने इसी पेज पे फर्स्ट रूल जो डिस्कस किया था. बट यहाँ पर अब क्या है? जब इनमें से एक होगा, या तो आइदर होगा, या नाइदर होगा, या ईच होगा, या एवरी वन होगा, तो उसके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट मतलब उनमें से कोई कोई ही करेक्ट है. नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. एवरी वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट. तो ये जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. नाउ एक्सरसाइज सी. इन दिस पैसेज अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है और जो वर्ब्स हैं ब्रैकेट में आपको दी हुई हैं, यू हैव टू करेक्ट टिक द करेक्ट वर्ब्स.
Now I am starting. How many students know or knows about the computers? In this sentence, subject is students. Students क्या है? Plural. तो according to plural, what will we use? Know or knows? Knows use कर सकते हैं? No. Knows तो हम use करते हैं singular के साथ. Students plural है. For that we will use know. The teacher asked Ritik raise or raises his hand and says Ritik. Which is subject here? Ritik. So according to Ritik we will use what will we use? Ritik singular है तो according to this we will use singular verb. Raise or raises? Can we use raise? No. As we have discussed कि जब भी नेम होगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो एस या ई एस यूज़ करेंगे वर्ब के साथ. The right answer will be raises. Miss I does do not. I subject is I. तो I के साथ क्या यूज़ होगा? नोट है तो हम क्या यूज़ करेंगे? Do. डज नहीं यूज़ होगा, डज यूज़ होगा ही शी इट किसी के नेम के साथ या फिर सिंगुलर के साथ. नॉट, नो, नोज और नो. अब ये आई के साथ ही हमें यूज़ करना है, ये आई की ही वर्ब है. डू नॉट तो आई के साथ क्या यूज़ होगा? नो. नोज नहीं यूज़ होगा. मच, आई ओनली नोज और नो अ लिटल. आई अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई. फॉर आई वी विल यूज नो. नोज नहीं यूज होगा, नोज यूज होता है ओनली ही शी इट या किसी भी वन पर्सन का नेम या फिर कोई सिंगुलर थिंग. ठीक है, सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन. चाइल्ड, मदर. A little because my father and mother are or is computer engineers. In this sentence, what is subject? My father and mother. My father and mother, as we have discussed कि जब भी and आ जाएगा उनके वर्ड्स के बीच में, दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे. फादर और मदर, फादर भी अपने आप में सब्जेक्ट है, मदर भी सब्जेक्ट है, बट एंड यूज हो गया तो वो क्या हो गए? प्लूरल हो गए. फॉर प्लूरल व्हाट विल यू यूज? आर. Exercise D. Change the highlighted words to their plural forms. Make the verbs agree with their subjects. हमें जो highlighted words हैं उनको plural form में change करना है और हमें ये भी mind में रखना है कि जो उसकी verbs है वो subject के साथ agree करे और then हमें उसको passage में rewrite करना है. This is my dog. This को हम change करेंगे plural में these. तो अब इसके साथ कौन सी verb agree करेगी? Are. These are my. अब dog था तो क्या हो जाएगा? Dogs. ही इज़ वेरी नोटी. अब डॉग्स यूज़ कर रहे हैं, पहले तो वन डॉग था तो उसके लिए ही यूज़ हो रहा था. अब वन से ज़्यादा डॉग हो चुके हैं, प्लूरल हो चुका है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? दे आर वेरी नोटी. वन डे माई डॉग स्टील्स अ बोन फ्रॉम अ शॉप. तो यहाँ पर जो डॉग है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल. डॉग्स. अब डॉग्स के अकॉर्डिंग हम स्टील्स तो यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा? स्टील. स्टील. अब भी कट कर देंगे हम इसमें. बोन्स, वी विल राइट बोन्स. अब डॉग्स ज़्यादा होंगे तो बोन्स भी ज़्यादा ही स्टील करेंगे. स्टील मीन्स चुराना, ज़्यादा ही लेंगे ना. फ्रॉम अ शॉप. शॉप एक से ही ले रहे हैं वो. इट रन्स अवे टू फाइंड अ सेफ प्लेस. इट, पहले इट यूज़ हो रहा था, वन डॉग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लूरल. डॉग्स, डॉग का प्लूरल. दे, अब क्या हो जाएगा? दे रन. रन्स नहीं है, रन अवे टू फाइंड अ सेफ प्लेस वेयर. अब फिर इट है, डॉग के लिए यूज हुआ है तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? दे. वेयर दे कैन च्यू द. अब बोन था, बोन्स. ठीक है, बोन्स हो जाएगा. इसी तरह से जो बाकी पैराग्राफ है जो है, दैट यू विल चेंज द सब्जेक्ट or highlighted words into plural and change the verb according also. Okay, do it carefully. And in this chapter what we have learned, come to recap. The subject and the verb in a sentence must agree in number. Always जो होता है verb वो subject के साथ agree करनी चाहिए. Whether the subject is singular, the verb always will be singular. If the subject is plural, the verb will be plural. Okay, so keep this in your mind and do the book work. Okay, thank you all of you.